हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस अभी हम करेंगे SBI PO का लाइव मॉक टेस्ट होली बोर्ड पर, और अभी 1 मिनट बची हुई है। सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई प्राइम बंडल PDF कोर्स लेना चाहता है तो इसका प्राइस ये है, आप कोड यूज़ कर सकते हो RJ12, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, और ये 515 ऐसा कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अभी अगर 7 बज गए तो हम मॉक टेस्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 7 बजे तक ही था और मैं थोड़ा सा लेट हो गया लगाते लगाते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा इंग्लिश का आता है, और ये RC है पहले। तो RC के हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में, इसमें कोई एंटोनियम सिनोनियम है तो वो देख लेते हैं। स्टिमुलेटेड, चलो इसको बाद में करते हैं, हम करते हैं ना। अब ये देख लेते हैं। रशिया अनाउंस दैट इट हैड कैप्चर्ड सोलेडर वॉज मॉस्को फर्स्ट क्लेम ऑफ विक्ट्री आफ्टर मंथ्स ऑफ failure on the battlefield. After months of perseverance of the battlefield, the Curiosity rover hovering on the surface of the great Mars. ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट controversial phenomenon in the universe, the black holes. In the new analysis are supermassive in nature that can weigh billions of sun in them. इसको बाद में देखेंगे। तो ये भी बाद में करते हैं। ओके, तो इनअप्रोप्रिएट और रॉन्ग स्पेल्ड है। मास वायलेशन कमिटमेंट डिस्कस्ड। China discussion to amass troops along the line actual control was a violation of its written commitment, said External Affairs Minister S. Jaishankar after a meeting with Australian Foreign Minister in Melbourne, where the India-China situation was discussed. The statement from the official spokesperson of the Ministry of External Affairs came after a senior official of the US government remarked on the hijab controversy in Karnataka. ठीक है। India signed an agreement with the United Nations World Food Programme for the distribution of 50,000 million ton of wheat that it has committed to sending to Afghanistan as part of humanitarian assistance, with diplomatic efforts underway to begin sending truck convoys through. According to the MOU, the wheat will be taken through Pakistan to the Afghan border, crossing handed after to official in beginning Feb 2022 in Kandar beginning. The US, तो ओके, तो ये बताना है हमें एरर की, एक बार हम बाद में देख लेते हैं। ठीक है, द एडिशनल स्टैम्प ड्यूटीज एंड taxes were imposed in 1999 to meet the expenditure necessary by the disaster earthquake. तो A और C taxes were imposed in, ठीक है। He now Parliament adopted stringent measure against the Liberal and retired to. He now retired Parliament adopted.
The heaven of the refugee for dash despots. डी तो चेंज होगा आई थिंक, है ना, डी चेंज होगा, डी चेंज हो करके ठीक है। Continued child abusing to authorities in reporting child abuse to authority is mandatory. Dash is to prevent to prevent continued abuse. सो ये हो जाएगा ए डी बी और सी ना। अभी पहले मैं करूँगा ये वाला, ठीक है, आर सी करूँगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ द अटल टिंकरिंग लैब हेल्प स्टूडेंट, और देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, what would be the motivation of the parents behind sending their children to the ATL। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। In the system of modern education, adult tinkering lab is something that allows children to experiment, learn, develop and conceptualize different scientific ideas. This lab facilitates projects similar to DIY project, where students are stimulated to apply the knowledge in a particular way. It is not only helping students to learn the real life application and importance of the theories that they learn from their books, but it is also developing a nature kinship towards STEM education। ठीक है, हेल्प टू बिकम साइंटिस्ट नहीं, रोबोटिक का नहीं है, एनेबल स्टूडेंट्स नॉलेज इन ए पर्टिकुलर वे, सही है। नेक्स्ट है तो ये देखना पड़ेगा, देखते हैं। और 700 टिकरिंग 7000 टिकरिंग 7000 देखते हैं, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, द अटल इनोवेशन मिशन हैज़ बीन able to establish over 7000 टिकरिंग across the country, और द 7000 हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। मिशन है तो एस्टेब्लिश थोड़ी ना हो गई अभी, ठीक, ये गलत ही आएगा पहला तो। फिर नीति आयोग K2 स्टूडेंट, नीति आयोग K2 स्टूडेंट कहाँ है? ये रहा नीति आयोग लॉन्च 4 K12 स्टूडेंट था यार ये तो, यानी कि ये गलत होगा। नीति आयोग लॉन्च अटल टिकरिंग लैब फॉर द K12, तो यानी कि यही गलत होगा फिर, है ना, वो ठीक माना जाएगा। अब ये है व्हाट वुड बी द मोटिवेशन ऑफ द पेरेंट्स बिहाइंड सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू द ATL। स्टिमुलेटेड का उल्टा बताना है, डिस्करेज ही होना चाहिए, इंस्पायर्ड पुश्ड, ठीक है, डिस्करेज ही होगा। और what reason has been mentioned behind student rising interest in doing something new। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टूडेंट आर गेटिंग द आइडियल एम्बियंस एंड टूल फॉर particularly experiencing the theories they learned in classroom, while everything getting online, students are keen to innovate something new. Most of the scientific or engineering innovation happen when different theories are blended together in a meaningful and focused way. Globalization, technological advancement, and automation, everything is emerging. Many traditional job categories are being scrapped. At this point, it was a great urge to rethink and reform the education system of India. That were a well-designed system program tailored to the need of the future sector
happened and is being executed. The number of STEAM jobs is increasing at the unrivaled rate. Professions established in the next decade will necessitate some level of math and science knowledge. The Niti Aayog launched a tinkering lab for K-12 students. Young minds are allowed to ideate, experiment to experiment, take risk, and they have the of a sense of trusting their skill better. Because of the idea of tinkering, they are evolving themselves from a visionary young child. According to the NITI Aayog, the Atal Innovation Mission has been able to establish over 7,000 tinkering labs across the country so far, enabling more than 30 lakh students between class 6 to 12 acquire a problem-solving tinkering and innovation mindset. Atal Tinkering Lab has a set of educational and learning equipment on science, electronics, robotic, open source, microcontroller board, sensor and 3D printer, etc., which is the future prospect can take students to higher level. It is going to be a country full of problem solving entrepreneur and parents cannot resist their child from learning. ठीक है, the set of education running the parents and to innovate the technology parents under दोबारा देखते हैं एक सेकेंड ये थोड़ा सा ये किया और ये टिंकरिंग लैब अटल टिंकरिंग लैब इज set education and learning equipment on importance has set education and equipped with हाँ, तो ये आ जाएगा इसका फिर है राइजिंग इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग न्यू तो इसमें तो ये मैंने देखा नहीं job is increasing in a system mode. Another tinkering is something that allows children experiment ये रहा student are getting the ideal ambience and tool for practically experience the theories learned in the classroom while everything is going to and reduce online learning to innovate something new. ठीक है इसका देखते हैं क्या होना चाहिए all guys young mind are allowed to elaborate recollect summarize eulogize इसका नहीं बता भाई क्या होना चाहिए experiment new mind are allowed to recollect either experiment take risk छोड़ते हैं इसको according to the passage what was the need to come up with the STEAM program STEAM system era it is not only helping students to learn the real life application and importance the theories that they learn from their books but it is also developing a natural kinship towards STEAM education students
Students are getting the ideal ambience and tool, particularly experience this with everything getting on online. Globalization, technology, advancement, automation. ठीक है, ये हो गया. Is emerging many traditional job category are scrapped. ये भी हो गया. A great rethink and reform. Indian education, all of the above आएगा इसका. ठीक है, अभी आगे देखते हैं कौन सा. तो ये देख लेते हैं अभी. अ ह्यूमन आई इज ऑफन described as a dash camera was with the resolution of around described as a एक second. One of the key component of the camera is the retina, a layer of the back of the eye that capture light with some special nerve cell. These cells called photosense are responsible for converting light into electrical signal which the brain interpret as vision. But for some people suffering from inherited disorder, the light capturing cells start dash and they gradually lose vision. यार ये वर्ड इतने अच्छे अच्छे दे रखे हैं, पता ही नहीं मुझे अच्छे. Slow down the loss of vision brought on by RP, but these have been dash limited by poor understanding. नहीं पता भाई इसका भी. And the poor understanding of the genes responsible for the disorder and the ये देख ले. The US on the US. The US on Thursday returned 248 antiquities, including a 12th century bronze Shiva Nataraj. Shiva Natarajan, valued to an estimated $15 millions to India. The largest such transfer of antiquities to the country. In readiness for a responsibility third wave. Civil Aviation Minister Jyotiraditya Sachin inaugurated a 45-bed COVID-19 healthcare center at Terminal 2 of the Delhi airport. The state-of-the-art facility is equipped with various necessary healthcare amenity and will cater to Delhi International Airport. Limited employee and their eye. Smooth execution of the first edition of the exercise is testimony to the professional ability. So B.
smooth execution of first edition of the mutual understanding and shared commitment of the two nations and their personal in ओके। सो नेक्स्ट है हमारा क्वांट का सेक्शन, और क्वांट में एक ये डी आई है चार्ट 1 और चार्ट 2, जिसमें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिटेड, अच्छा, गिवन 5 पार्क, जो कि ये दे रखा है 12,000। ये देख लेते हैं। ए हैज़ द 5 डिफरेंट पार्क, 2 charts A and B are given. Chart A shows the percentage distribution of the number of visitors, adult or child. ठीक है। Chart B shows the distribution of number of adult who visited out of the total adult. ओके, पहले में adult और children है, दूसरे में सिर्फ जो दे रखा है हमें adult का दे रखा है। total number of visitors ये है। the ratio between the two number of children is a total number of children and टोटल नंबर ऑफ अडल्ट हु विजिटेड इन द अडल्ट और चिल्ड्रन का इन्होंने दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अडल्ट का 7 इसका 5 है, 7,000 और ये 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी निकालते हैं कि पी क्यू आर लेना पड़ेगा। पी क्यू आर एस और टी, इधर टोटल अडल्ट और चिल्ड्रन। ठीक है, अब टोटल देख लेते हैं। 12,000 है ना, 12 और 12 3 36 होता है, 36 और 144 180 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1,800। और 12 इंटू 25 करेंगे, 12 पंजे 60, 6 बाद 24, 30,000 आ गया। 3,000 सॉरी, 12 का 144 और 12 और 18 करेंगे, 12 8 96 9, 12 एकम 12, 1 2 21, 12 3 36 हो गया। 20 में है 10% है, और ये अडल्ट का है तो 700 हो जाएगा। 700 इसका हो गया तो 1100 ये हो जाएगा। 25 25 175 1750, ये 1250 हो जाएगा। 7 दूनी 1400, ये सिर्फ 40 हो जाएगा फिर ये। ओके, तो ये है 15 15 17 15 7 105 1050। तो और ये कितना हो जाएगा, 0 6 में से 1 1 1। ठीक है, और इधर 7 2100, तो ये बनेगा 1500। इनको ऐड करके देखते हैं। 1 1 1 0, एक है 1100, एक हो जाएगा 1290, एक बनेगा 1500। 0 9 1 10 1 5 3 8 9 10 0 1 5000। सही है, हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ अडल्ट हु विजिटेड पी और क्यू। अडल्ट का है पी और क्यू 0 5 7 14 224 50, और चिल्ड्रन जो कि क्यू में 1250, 0 0 2 1200 आ गया। रेशियो द नंबर ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ द बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ अडल्ट आर ओ टी। अडल्ट आर ओ टी में 0 0 5 3, वो किसके साथ है, ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु विजिट पार्क क्यू। क्यू में है 3,000, तो 7:5 आएगा।
विजिटर इन द पार्क क्यू, अडल्ट जो कि ROT, अडल्ट ROT। ओके, तो ये आना था 0053, यही तो है अडल्ट ROT इंटू में 5 और 6 आएगा, सॉरी 7:6। और द सम ऑफ द नंबर ऑफ अडल्ट हु विजिटेड द पार्क P एंड R टुगेदर, P और R 21 हो गया। इज हाउ मच % ऑफ द टोटल नंबर विजिटेड द पार्क। टोटल जो है 12,000 है, तो ये 2, ये 1, ठीक है 4, इधर आएगा 7 और 2 और 5 7 में 35 काम करेंगे तो 17, 17.5। सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स हु विजिटेड इन द पार्क क्यू, टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ विजिटेड इन द पार्क क्यू एंड द क्यू में हो गए 3,000। चिल्ड्रन POT में, चिल्ड्रन POT 0122 012552, ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ विजिट इन द पार्क क्यू 3,000 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन POT, ओके POT बोला था, सॉरी, तो 2600 ही हो जाएगा, 5600 हो जाएगा इसका। आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड इन द पार्क Q और R, सॉरी चिल्ड्रन 1250, R में 40, 40% फ्रॉम देम आर 1290 में से 40% जो है इसके लोकल है। कम्स फ्रॉम द लोकल, यही निकालना हमें। 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8, 9 10 और 11 का 1 4 और 1 516। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी छोटे वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं हमें, और इसको तो छूना भी नहीं है, गलती से भी मत पकड़ के बैठ जाना। माइनस 8 7 56, 13 7 91, और ये इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। और यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस 1 2, एक x की वैल्यू आएगी 0, दूसरी आएगी 12, और इसमें माइनस माइनस आएगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा सीधा सा। तो इसमें क्या करें, दोनों को ही माइनस कर देते हैं। कितना आएगा, ऊपर वाला x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 5। तो ऐसे तो नहीं बनेगा बात। 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 30, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, माइनस करेंगे 5y इक्वल्स टू 20, y की वैल्यू होगी 4, इधर 4 आएगा 6, x की वैल्यू आएगी 3, तो y इज़ ग्रेटर देन। इसमें दोनों ऊपर वाले प्लस प्लस 168, 4 पर जाएगा 4 2, 7 6 42, 7 दूनी 14 और 3 4 3 12, बना नहीं बना, तो क्या बनेगा 7 21 और 4 दूनी 8, ये बन गया 21 और 8। इसमें क्या बनेगा, माइनस प्लस 12 6 6 4 4 3 12 और नहीं 6 चौक 24 तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। इधर से 3 3 4 चौक 16, 3 3 9, ये भी नहीं बन जा। 3 3 9 9 दूनी 18 और 8 दूनी 4 दूनी 8, ये बन जाएगा 18 और 8। ग्रेटर देन इक्वल्स, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y प्लस 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 3 5 2 2 आ गया, 16 दूनी 32 6, यही आएगा ना 16, वो 17 दूनी 34 आएगा 17। तो अब 4 पर गया, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 11, 4 4 चौक 16 और 22 बन गया 16 22।
418 2 पर गया 209। अब ये कितने पर जाएगा? 19 पर गया, एक और एक 11 दूनी 22 और 9 22 और 19। सो ये कुछ भी नहीं बनेगा। एंड इसमें क्या दे रखा है? परसेंटेज, इसको भी मार्क कर देते हैं। अब ये देखते हैं 45% ऑफ 220, तो ये 90 इंटू 1110 आएगा, 99 आ गया इधर। इधर है 16 इंटू 16 पंजे 80। फिर है 50% ऑफ, तो ये है 80, तो आ जाएगा 40 120 9 9 10 11 219। अब ये कितना आएगा? 31 इंटू 3 3 3 3 9 1850 37 और 7 5 50 आना चाहिए। 53 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दूनी 24 24 उधर जाएगा प्लस 7 167 60 इंटू 120 12 छिक 72 और इधर 720 डिवाइड बाई 9 80 आ जाएगा। फिर है 215 और ये 30 इंटू 5 दिए 15 माइनस का 2। एक 118 112 032 माइनस 20 20 चौके 80 80 इधर जाएगा तो 150 बचेगा इक्वल्स टू एक्स प्लस 18 छिक 8 छिक 48 4 6 4 10 108 आएगा। 45 इंटू 66 यानी कि 90 इंटू 33 करेंगे। 9 3 27 7 2 27 28 और 29। ठीक है, एक जीरो लगेगी 30 बनेगा। ये 30 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 11 1 4 माइनस 7 इंटू 3 7 21, तो 20 आएगा आंसर। ओके 125% ऑफ यानी कि 5/4 ऑफ P is 1 less than the value of 1 less than the value of Q. The average value of Q or R is 5 more than the value of P. The sum of the value of P plus R की वैल्यू दे दी है और P plus R की वैल्यू दी है ना, तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, क्या करें? Q plus R 10 plus 2P ये आ गया। फिर इसमें क्या करें? Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, R की वैल्यू यहाँ से। R की वैल्यू पुट करेंगे तो 30 माइनस P और Q की वैल्यू प्लस 5P/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 प्लस 2P। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक P ये है, दूसरा P उधर जाके माइनस होगा ना, 3P आ जाएगा। 5P/4 माइनस 3P और ये कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 इक्वल्स टू माइनस 21 आएगा। इधर आया 5P माइनस 4 थी 12P, उनमें 4 माइनस 21। ठीक है, 4 4 दूनी 8 आ गया इक्वल्स टू ये बनेगा 7P। P और 2 P की वैल्यू होगी 12 5 12 गया 5 से 15 15 और 1 16। Q की आएगी 16, Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16। अब ये है गिवन बिलो
the line given shows the percentage of the number of student in mechanical or out of the total number of student in college, percentage of student पेट्रोलियम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, और फिर इनका डिफरेंस दे दिया, ठीक है। तो इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी बस। ए बी सी डी 4 ही है, ये भी सही है। मैकेनिकल और पेट्रोलियम, इधर टोटल लिखेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, ये है मैकेनिकल है 80 और पेट्रोलियम है 40। 40 की वैल्यू इसने दे रखी है, डिफरेंस है 30, एक की वैल्यू 30/, ठीक है। अब इसका 80 का निकाल लेते, 2 3 3 दूनी 6 आ गया। यहीं से अगर 40 की निकालते तो आया था 30। आगे देखते हैं, ये है सेंटर में ना 1 2, तो ये है 75 पहला, दूसरा है 40, बचा कितना 5, 35। इस 35 की वैल्यू, अरे शिट गलत कर दिया। डिफरेंस तो ये ऊपर वाला और मैकेनिकल वाला है, ये 30 है पहला, तो दूसरा है, ये कैसी बात हुई, परसेंटेज इतना ये और इतना ये, और इनका डिफरेंस दे रखा है 10 की वैल्यू, 10 1 की वैल्यू 8 या 24 आ गई इधर, और 8 चौक 32, 320। सेकेंड वाला क्या मैकेनिकल है ये, तो ये कहाँ है, सेंटर में है ना ये, आई थिंक होना तो सेंटर में चाहिए, यानी कि 35, दूसरा वाला 40, 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू आ गई 15, 15 पंजे 75, 7 15 45, 7 5 12, 5 15 चौके 60, 600। सेकंड जो है, अब ये दे रखा है 40, दूसरा वाला है 35, वही 5% की वैल्यू 14, 14 चौक 56, और 14 पंजे 70, 7 14 3 42, 9 और 4 आ गया। फिर है ये, तो 32 है ये तो, और इधर कितना है, ये सेंटर में है, यानी कि 43, कितना आया 8 9 10 और 11, 11 की वैल्यू नहीं। अब ये क्या बात हुई यार, इन लोगों ने सही से नहीं दे रखी ये चीज़ें। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ माइनिंग स्टूडेंट इन बी और सी टुगेदर। एक सेकेंड, ये गलती कर दिया मैंने, सारा का सारा चीज़ ही गलत कर दी। माइनिंग का निकालना है बी और सी में। बी में मैकेनिकल, पेट्रोलियम और माइनिंग, एक तो ये ढंग से नहीं दे रखा इन लोगों ने, 35 माने या इसको क्या माने, 35 40 और 35 दूनी 70, 25 आएगा ये। सी में देखे तो पेट्रोलियम माइनिंग, ठीक है, तो सी में कितना आएगा, यहाँ से 40, पेट्रोलियम का आएगा 35, 35 के बाद 25, 60, ठीक है। अभी डिफरेंस जो है वो है पेट्रोलियम और माइनिंग का 10 की वैल्यू, सी में है 70, 1 की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से है 15 की वैल्यू इसने देखे 75, 1 की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पर हमें कहने माइनिंग का बी और सी, माइनिंग का 25 पंजे 125, 25 7 175, तो ये आ गया 300। 300 का आई थिंक इन दोनों में से बैठेगा, पेट्रोलियम बी सी और डी। पेट्रोलियम तो निकाल लेंगे अब, 5 के 20 और 7 पंजे 35, 3 7 21 22 23 24, 5 4 और 4
अब ये देखना पड़ेगा 15 और यानी कि आया तो ज़्यादा वाला यही होगा। काफ़ी कम मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी इधर, वरना मैं सारा निकाल लेता था। ठीक है, जो भी अभी हो गया हो गया। सो अभी लास्ट रहता है हमारा रीजनिंग का। सो रीजनिंग अभी कर लेते हैं। 7 पर्सन है, सर्कुलर फेसिंग सेंटर, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट टाइप ऑफ जेमस्टोन। 7 है, 1 और सेंटर की तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 पर्सन ए और पर्ल ए 1 2 पर्ल आ गया ए 1 2 पर्ल इधर आ जाएगा। द वन हु अंबर एंड द वन हु पर्ल इज एडजेसेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक साथ होंगे। और डी हु लाइक, डी लाइक करता है ब्रेल, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंबर। Second to the left of Amber, G who doesn't like pills। ये G नहीं होगा इन क्वाड्स के, G और क्वाड्स एक साथ होंगे। G who doesn't like quad। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा और पर्ल भी नहीं आएगा। ठीक है, G का और G सेंटर में होगा B और फिर D के, ये भी ठीक है। अब देखते हैं अगर पर्ल और अंबर, अंबर अगर इधर आ गया, ठीक है, अंबर अगर इधर आता है पर्ल और अंबर एक साथ, तो इधर अंबर सेकंड टू द लेफ्ट ब्रेल डी, ये नहीं आएगा तो अंबर आएगा इसमें, तो इधर आएगा। अब अंबर के सेकंड टू द लेफ्ट डी ब्रेल, अब डी जी इधर आएगा नहीं तो, और इधर भी नहीं आ सकता जी, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। अब अगर इधर अंबर आता है, अंबर इधर सेकंड टू द लेफ्ट 1 2, जी इधर आ सकता है 1 2 डी, ओ तो जी भी इधर आ सकता है। ठीक है, अब अगर इधर अंबर आता है सेकंड टू द लेफ्ट डी ब्रेल, डी अगर इधर आ गया, ये वाला पॉसिबल है 4 5 6 7 प्यूल्स, दो छोड़ करके ए अंबर, अंबर सेकंड टू द लेफ्ट डी ब्रेल और डी ब्रेल आ गया, और इधर अंबर और प्यूल्स एक साथ थे, ये दोनों हो गए, ये ख़त्म। अंबर के लेफ्ट में ये हो गया, ये भी ख़त्म। अब डी जी और बी इधर आएगा, डी जी और बी इधर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु लाइक एमरल्ड सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 1 2 3। फिर है एज मैनी पर्सन एफ और सी, उतने ही सी और ई, एफ सी और ई इधर ही आएंगे। ठीक है, सी आएगा सेंटर में ही बैठेगा सी तो। और नो वन सिट टू द बिटवीन ई और बी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये गलत हो गया, एफ आ गया इधर। जी जो कि क्वार्स नहीं है तो क्वार्स आएगा इधर। द वन हु लाइक रूबी सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो रूबी क्वार्ट्ज। ठीक है, जेमस्टोन ऑफ जी, जी के पास एक बचेगा, डायमंड बचेगा ना। हाउ मैनी पर्सन सिट ई और ए व्हेन काउंटेड राइट ऑफ ए, ई और ए राइट ऑफ ए 1 2 3, बी और एफ जो कि लेफ्ट ऑफ एफ
तो नहीं आएगा, 3 आने चाहिए ना, जी और सी राइट ऑफ सी, यही होना चाहिए, जी और सी राइट ऑफ सी, सही है। नेबरिंग ऑफ द पर्ल, तो सी और बी, क्वार्ट्ज और अंबर, बी और क्वार्ट्ज। स्टेटमेंट ट्रू बतानी है, एफ एमलेट सही है, बी अंबर ये भी सही है, ए रूबी ये भी सही है, ऑल ऑफ देम आर राइट। ए और डी एक साथ हैं, ई और सी एक साथ हैं, डी और जी एक साथ हैं, सी और एफ एक साथ हैं, जी और लास्ट वाला तो गलत होना ही है। अब ये देखते हैं, पी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एस, पी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ एस एंड मदर इन लॉ ऑफ एल, पी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एल, जे इज़ मदर इन लॉ ऑफ डी, जे इज़ मदर इन लॉ डी हु इज़ द फादर ऑफ D, who is the father of S, ठीक है। और क्या बोला था, एंड मदर इन लॉ ऑफ एल, ये भी बन गया। आई हु इज़ द ब्रदर ऑफ के, आई इज़ द ब्रदर ऑफ के, ओ इज़ द सन ऑफ आई, ठीक है। एस इज़ द ग्रैंड सन, एस इज़ द ग्रैंड सन of K who is married to J, K is married to J, K इधर बना लेते हैं, S is the grandson हो गया, ये ख़त्म। K का एक भाई है I, और I का लड़का है O, इसको सेट करना है अभी हमें। P कहाँ बनेगा फिर ये, P आई थिंक इसके साथ बनना चाहिए P, ठीक है। P और इसका L है ना, P L और इधर आएगा, फिर P और L और S कैसे बनेगा भाई। हाउ O इज रिलेटेड टू K, O इज रिलेटेड, O तो नेफ्यू बना इसका, O का तो पता चल ही गया। इफ M इज द मदर ऑफ O, M इज द मदर ऑफ O, यानी कि इधर M होगा। हाउ L इज रिलेटेड, L तो फिर भाई इसको छोड़ते हैं एक सेकेंड। हाउ S इज रिलेटेड टू I, S जो कि है ये, और ब्रदर इन लॉ, नहीं आई थिंक ये मैंने गलत बना दिया, छोड़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ओनली फ्यू स्विंग, जो कि ये पीच नो पीच, कर्व ऑल कर्व आर लाइन, ठीक है। सम लाइन कैन बी पीच, लाइन कैन बी पीच हो सकती है। सम स्विंग आर नॉट कर्व, सम स्विंग्स नॉट कर्व, ये सही है। बोथ, ओनली फ्यू एटलस, जो कि है मैप नो मैप, चार्ट ऑल, नो एटलस इज कलर, नो एटलस सॉरी काउंटर, ये जो है चार्ट है। सम काउंटर कैन बी मैप, काउंटर कैन बी मैप हो सकता है। ऑल एटलस कैन नेवर बी चार्ट, ऑल एटलस कैन नेवर बी चार्ट, ये भी सही है। फिर है ओनली फ्यू MOU, MOA एटलीस्ट सम, यानी कि सम MOA LOE, सम LOE LOI, सम LOE कैन बी MOU, सही है। ऑल MOA, हाँ ये गलत है, ओनली वन। फिर इसको कर लेते हैं हम मार्क, U ग्रेटर देन D, U ग्रेटर देन MM ग्रेटर देन D, सही है। P ग्रेटर देन A, P ग्रेटर देन J, ये नहीं बनेगा, ओनली वन। J ग्रेटर देन G, J ग्रेटर देन G, J ग्रेटर देन K, K ग्रेटर देन F,
ये आइदर और जाएगा इसका। जेड ग्रेटर देन एल, जेड ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन, गलत, वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, सही है। ओनली सेकेंड। और गर्ल सम बताना है इनका, गर्ल निकाल लेते पहले। 1 2 46 53 84 38, तो 46 आएगा। उसके बाद है गिव का, एक सिर्फ इसी में है, तो 36 92 92 हो सकता है, 38 नहीं होगा, 53 ये भी नहीं होगा, 8 138। कोड बताना है सम का, एक सिर्फ उसी में 78 नहीं होगा, 24 हो सकता है, 36 57 नहीं होंगे। ब्यूटीफुल बॉय का कोड दे रखा है ये, व्हाट इज़ द पैसेज फ्रेज फॉर द कोड, ठीक है। 84 का बताना है, 84 ये रहा। फ्यू, फ्यू नहीं होगा, गर्ल ये भी नहीं होगा, यूज़ और परफ्यूम, यूज़ का होगा ये तो सीधा सा। और 57 का एक और एक दो, इन दोनों में से निकालना होगा। ऑल नहीं होगा, फ्लो, एक सेकेंड, गर्ल, गर्ल का भी नहीं होगा, 78 का है ना। आर ब्यूटीफुल, आर का बनेगा, आर यूज़ आर, ठीक है। अब इसका होता है 36 का, 36 ये रहा, 36 एक इसमें है, इन दोनों में है। फ्यू फ्लोवर्स, तो एक का इसका पता चल गया हमें, फ्लोवर्स होगा। 53 का, 53 इन दोनों में फ्यू हो जाएगा, फ्यू फ्लोवर्स। और भी देख लेते हैं, गर्ल, परफ्यूम भी तो हो सकता है ना, फ्यू और फिर परफ्यूम, कैन नोट। अब देखते हैं 10% है जो कि रो 1 में है, ये वो फेस कर रहे हैं साउथ में, तो 1 में सी डी ई, सेकेंड में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। बनाते हैं इसको 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 हो गया। वाई थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वाई होगा ना, 1 1 2 3, वाई थर्ड टू द राइट ऑफ वी, 1 2 3। और बी सिट अपोजिट टू वी, A sit second to the left of B. The number of persons sit to the left of B same as the right of C. ये नहीं बनेगा। और U sit second to the left of W. U second to the left of W. E and B are not, तो E इधर आ जाएगा, A B C D, और इधर बनेगा X। अपोजिट टू X है D, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B इज नॉट इमीडिएट नेबर। X और W सही है, ये V और U नॉट एन इमीडिएट नेबर, ए और सी ऑल ऑफ देम आएगा, ठीक है। सिट सेकेंड टू, सिट टू द राइट ऑफ यू, तो दो हैं लेकिन सेम एज द लेफ्ट ऑफ एक्स नहीं, राइट ऑफ डब्ल्यू ये भी नहीं आएगा, बिटवीन बी और ई ये सही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू द डी, ई विद रिस्पेक्ट लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट होगा, टू द फाइनल, तो ई इज अपोजिट टू वाई सही है। नो वन सिट डी और ए ये भी सही है। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी थर्ड टू द लेफ्ट, वन सेकेंड थर्ड टू द लेफ्ट सही है, ऑल ऑफ आर ट्रू। अब देखते हैं 8% है जो कि ये है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीएम, सीनियर मैनेजर, पीओ, क्लर्क और, ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। तो क्लर्क, मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद आएगा मैनेजर, मैनेजर इधर आएगा पीओ, लास्ट वाला बनेगा क्लर्क।
only 2% P or S, where S is junior to P, और P who is junior to the one, D G M, P आएगा नीचे, और as many person junior to S senior to the W, तो इसके नीचे आएगा ना P 1 2 S, P 1 2 S, 1 2 W, एक है W, P S, इधर आगे W, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ओनली 3% X और W, 1 2 3, 1 2 3 बनेगा नहीं, गलत, 1 2 3 X और W आ गया, T is 3% senior to X, 1 2 3 3, V is immediate senior to Q but junior to the one, CM, तो CM इधर हो गया, V और Q इधर आ गया, और the number of person designated between U and Y same as the junior to the Y, junior to Y है इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, U and Y बनी गया, आई थिंक ये नहीं बनेगा, ठीक है, एक बच गया वो, ठीक है, C और चीफ मैनेजर CM है, Y 2% सीनियर टू S, सही है, और U और T हो गया, 2 का गैप है, Y और V ये भी 2 का, S और P 2 का गैप है, X और W ये 3 का गैप हो गया, W एंड Y 2 का गैप, सही है। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू W, 1 2 3 4 5 6 7, जूनियर टू W है 7, Q और R के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, R ही बनेगा, 7 ही तो थे ये, 3 3 6 7, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड V कौन था, ये PO था, फोर्स होता ना, S इज मैनेजर, सही है, W जूनियर टू R ये भी सही है, ओनली 4 Q और P, 1 2 3 4 ये भी सही है, Y इज इमीडिएट सीनियर टू X, Y इमीडिएट सीनियर टू, ये गलत है। अब ये देखते हैं, 3 7 9 8 2 4 6, 1 is subtracted to all the digit, 5 0 2 6 8 7 1 3 5, the product of the digit which is third from the left hand, fourth from the right, 1 2 3 4, दूनी 14 हो गया, और ये देख लेते हैं अभी एक बार, 2002 2003 4 5 6 7 8 9, S is 2000, ये नहीं होगा, लीप ईयर कौन से होते हैं जो, अच्छा ये तो होगा, ये होगा, 2 ही है, तो S या तो इसमें होगा या फिर S होगा इसमें, ओनली 1% SOT, W is immediately after T, W, the number of person joining before W is 1 less after X, 1 2 3 4 5, 5 है तो 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 हो जाएंगे, X और Y joined the school 2 year after X, Y आ गया इधर, Y both Z and U join the consecutive, U और Z इधर आ सकते हैं, इसमें बन नहीं सकता, इसमें आ सकता है, 1% U और V, U Z U और V बन गया, और X जो कि आएगा 2007 में, ठीक है, 2006 में U इमीडिएट आफ्टर और 2 years आफ्टर S, ये सही है। एज मैनी पर्सन जॉइन बिफोर U, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आफ्टर Z इमीडिएटली आफ्टर, सही है। T हो गया, S हो गया, Y U और V, ठीक है, 9, तो 2 4 6 8, Y आएगा हमारा गलत। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन Y और W, 1 2 3 4 5, मोर देन 4 हो गया। तो एक ये क्वेश्चन रहता है हमारा, इसमें क्या है, ऑल द लेटर आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ECHO, ये तो नहीं पता चलेगा। रिमेन इन द, ये नहीं पता चलेगा भाई, ये तो टाइम ख़त्म हो गया। 3 क्वेश्चन रह गए ये, और ये भी बन जाता था तो हो जाते थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ अच्छा हुआ है ना। एंड अभी मेरे अटैम्प्ट देख लो, 32, 17 और 16 आंसर मैंने किए हैं ये। और इनमें मुझे लग रहा है एक्यूरेसी आई थिंक 49 क्वेश्चंस में जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट रहती है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बस। और 16 का मैं 100% श्योर नहीं हूँ कितने मेरे सही होते हैं, ठीक है। एंड अभी वैसे तो टेस्ट ही ओवर हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर लगाया है तो बताना, और इसका रिज़ल्ट जो है कल पता चलेगा, ओके।